Hi everyone. The best thing I ever did is to believe in myself, believe in yourself. Today is 22nd, 23rd of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस होता है। फियर जितना बड़ा इमेजिनेशन में होता है, जब इस फियर को हम फेस करते हैं तो रियलिटी में ऐसा इतना ह्यूज फियर नहीं होता है। वी सफर मोर फ्रॉम इमेजिनेशन देन फ्रॉम रियलिटी। यू नो, लॉन्ग टर्म गुड हैबिट से हेल्थ होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से वेल्थ होता है, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिफ्लेक्शन से पीस है, लॉन्ग टर्म फोकस्ड एफर्ट से टैलेंट है एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से लव होता है। इफ यू वांट टू वैल्यू, थिंक एंड एक्ट लॉन्ग टर्म, स्टडी फुल थ्रॉटल। This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Abate मतलब होता है उकसाना, encourage और assist to do something wrong, in particular to commit a crime or other offense. Undulating है, move or go with a smooth up and down motion. Shoddy, shoddy का मतलब होता है तुच्छ, badly made or done. Solace means आश्वासन, give comfort or consolation to. Pomp मतलब वैभव, ceremony and splendid display, especially at a public event. So ये आज के vocab words हैं. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSET. ये reading comprehension है 2023 CSET के prelims exam का. Now see, reading comprehension को solve करना भी एक art होता है. Let us see. In India, while the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of the economy, इंडिया में unemployment rate frequently used measure है poor performance of the economy का. Under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. मतलब young professionals हैं, young educated persons हैं, उनको just after graduation employment नहीं मिल रहा है, या फिर वो willingly unemployed हैं because they are waiting for something like जो वो desire करते हैं. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, and rising education levels inflate unemployment challenges. So see, this is RC. सबसे पहले पैराग्राफ को क्विकली रीड करना चाहिए, स्कैन करिए और फिर आइए सवाल पे. जो भी आरसी है, इवन जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसकी डिफिकल्टी यहाँ से नहीं डिसाइड होती है, उसकी डिफिकल्टी यहाँ से ऑप्शन से डिसाइड होती है. जैसे इस बार GS1 में भी क्वेश्चंस बड़े इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे, ऑप्शंस ज्यादा डिफिकल्ट थे. तो डिफिकल्टी लेवल हमेशा ऑप्शंस से डिसाइड होता है. एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन. कभी भी हम आरोप या प्रत्यारोप लगाते हैं या फिर हम ब्लेम करते हैं, ये कभी भी पसंद नहीं किया जाता है. सो द पॉइंट इज, यहाँ पर भी हम काइंड ऑफ लाइक आरोप लग रहा है. एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन. और हम यूजुअली, ये पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता ट्रू. अनएम्प्लॉयमेंट must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. This sounds logical, well balanced. There are no labor intensive industries to accommodate the huge number of unemployed. Again आरोप लग रहा है, very narrow, no labor intensive. No, the education system should be properly designed so as to enable the educated people to be self. No, we are not like कि self employed हर कोई हो जाएगा. The point is we need employment generation as well. Problem यहाँ पर है, unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. So ऐसा RC है, इसका आंसर B है. ऐसे नहीं तो भी 25 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चंस आते हैं जो CSET में आते हैं. 25 into 2.5 करिए, you can easily score around 40 to 50 marks only in RC itself. और 66 प्लस मार्क्स आपको टोटल है. सो इवन 2023 प्रीलिम्स बैच में भी स्टूडेंट्स हैव डन रियली गुड, रियली गुड. रीजन बीइंग, हमें एग्जाम को स्ट्रैटेजी के हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी के हिसाब से. जस्ट लाइक दैट नहीं कि हम केवल हार्डवर्क कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं. हमें स्ट्रैटेजाइज करना ज़रूरी होता है प्रिपरेशन को. और दैट इज़ वाई ये जो एक्सपर्ट, जो इतना एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट गाइडेंस होता है, ये काम आता है. दिस हेल्प्स. सी, ये मेंस कोर्स है. मेंस कोर्स में सितंबर तक हम सारा कवर करेंगे, GS 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
देन प्रीलिम्स 1 में भी ये जो 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में भी बाय नाउ सबने ये रियलाइज कर लिया होगा कि प्रीलिम्स अब ऐसा नहीं है कि बस हम कुछ करंट अफेयर्स के मॉड्यूल्स पढ़ लें, कुछ कोर सब्जेक्ट्स की गिनती की 2-3 किताबें पढ़ लें और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही आपका एंड गोल नहीं है, आपको मेंस भी लिखना है और इंटरव्यू भी लिखना है। सो दैट इज़ वाई ये जो प्रीलिम्स 2024 प्रीलिम्स 1 कोर्स है, इसमें ऑल द 7 एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। आज इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करंट अफेयर्स की क्लासेस थी। इसमें हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सॉफ्ट स्किल्स, OLQs, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे ध्यान दिया। इट वाज एन अमेजिंग सेशन। यू कैन जॉइन दीज क्लासेस। ये आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। किसी भी क्लासेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे कितने डिसिप्लिन और रेगुलरिटी और जिम्मेदारी पूर्वक सारे टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो रहा है, क्लासेस हो रही है, एंड दिस इज़ अवर USP। ओके, सो जॉइन इट, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिमिलरली कल से ज्योग्राफी फिर से रिज्यूम करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी इन द मॉर्निंग। ये है दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आप बाल गंगाधर तिलक जी हैं। एंड जो हमारा मंडे टू फ्राइडे है, इसमें हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सैटरडे संडे हम ऑफ कर रहे हैं। What was the name of the operation by the Indian Navy during the कारगिल वॉर? नाम बताइए क्या था ऑपरेशन का। ये सोल्जर्स हैं जो दिल्ली पर दरबार लगा था 1911 में, तो कैपिटल शिफ्ट हुआ था कोलकाता टू न्यू दिल्ली। आप हैं खाशाबा दादा साहिब जाधव जी, आपको पॉकेट डायनमो कहा जाता है। आप फर्स्ट इंडियन हैं टू विन एन ओलंपिक मेडल ऑन जुलाई 23, 1952। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी, इसको बोलते हैं चिकनकारी। इसको क्या बोलते हैं? चिकनकारी। वाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये जनपथ मार्केट है, ये लखनऊ में है। फाइंड द आर्ट ऑफ चिकनकारी ग्रेसिंग लखनऊ's लेन्स। देन वॉच सिंपलेस्ट फैब्रिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू यार्ड्स ओवरफ्लोइंग विद एक्सक्यूजिट फ्लावर। सो ये क्या है? चिकनकारी, लखनऊ की स्पेशलिटी। अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं। आई विल ट्राई, कल तक मैं सारे नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा जो पेंडिंग 3-4-5 दिन के हैं। आई विल शेयर इट टुमारो। सो दिस इज सैटरडे जुलाई 22। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ बोला रेजेज एस्पायरेशंस ऑफ तमिल्स विद रानिल विक्रमसिंघे। So Prime Minister calls for implementation of 13th Amendment। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 13th अमेंडमेंट में स्पेशल राइट्स की बात है तमिल पॉपुलेशन का। तमिल वो इंडियन ओरिजिन के हैं। प्रोविंशियल इलेक्शंस इन द आइलैंड कंट्री। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया को थैंक्स बोला, लॉर्ड किया इंडिया का सपोर्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ओवर द पास्ट ईयर। अब सी, ये है बूस्टिंग टाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे। तो सी, 13th अमेंडमेंट है श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट फॉर इट्स तमिल पॉपुलेशन। तो इस बात की हमने डिमांड की। वेलकम किया श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को। एंड यहाँ पे बात हुआ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उनको हम स्पीड लाइन पे लाएं, ग्रेटर कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करें बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडियन ओरिजिन के ये तमिल्स हैं जो 200th एनिवर्सरी अभी मना रहे हैं अराइवल इन द आइलैंड नेशन। और इसका रूट कॉज भी ब्रिटिश है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी ब्रिटिश कोलोनियलिज्म भी पढ़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका में प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन को एज एन लाइक इंडेंचर्ड लेबरर्स भी और फोर्सफुली भी उनको ट्रांसलोकेट किया गया इन द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। तो ये 200th एनिवर्सरी है। सो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकॉन्सिलिएशन इन श्रीलंका। We hope that Sri Lanka will fulfill the aspirations of the Tamils. Sri Lanka will take forward the process of rebuilding for equality, justice and peace, because there was a time जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम लिट्टे। तो एक टाइम था जब यहाँ पे सिविल वॉर की डिफिकल्टीज थी। द पॉइंट इज इक्वालिटी, जस्टिस एंड पीस अब रीएंश्योर करना चाहिए। समटाइम्स बैक श्रीलंका में टेररिज्म के भी इश्यूज आए। फिर श्रीलंका बिकॉज टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण ग्लोबल जो कोविड-19 का इम्पैक्ट देखा गया, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर भी है। सो इन सब के कारण श्रीलंका को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हुआ। प्लस चाइना के साथ जो अनसस्टेनेबल लोन्स चाइना ने दिए थे श्रीलंका को, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए थे जैसे पोर्ट्स
एटसेट्रा, वो भी श्रीलंका को काफ़ी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज दिए हैं. So we hope that Sri Lanka will fulfill its commitment to implement the 13th Amendment and to hold provincial council election. Profound appreciation किया श्रीलंका ने because being a responsible neighbor, इंडिया हमेशा से forefront पे रहा है जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. हम हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर होते हैं. अभी हमने श्रीलंका को मेडिसिन प्रोवाइड किया, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी हुआ. सो अगेन यहाँ पे प्रोफाउंड एप्रिशिएशन है फॉर द सपोर्ट दैट इंडिया हैज एक्सटेंडेड टू श्रीलंका ओवर द पास्ट ईयर. मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड रहा है ये श्रीलंका की मॉडर्न हिस्ट्री में. तो ये बायलैटरल टॉक्स थे, हैदराबाद हाउस में हुआ. हैदराबाद हाउस कहाँ पर है, किस जगह पर है हैदराबाद हाउस? इज इट इन आंध्र प्रदेश? वेयर इज दिस हैदराबाद हाउस? आंसर. सो द पॉइंट इज कि ये एरियाज है एनिमल हस्बेंड्री, रिन्यूएबल एनर्जी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, त्रिकोणामाली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न श्रीलंका में, और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज भी दोनों इंडिया एंड श्रीलंका आगे बढ़ाएंगे. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस. This is not at all right. This is not at all right. Any type of violence and using women as an instrument is not acceptable. Law and order should prevail. Law and order should prevail. Or anyone who's like creating entropy, chaos and all type of disturbances, taking law. तो the point is वहाँ पे strict government action is very much required with full might. Will not notify fact-checking unit till September 4, Center tells Bombay High Court. अब see, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो है फेक न्यूज़ का. फेक न्यूज़ के लिए जिसने फेक न्यूज़ क्रिएट किया है वो रिस्पॉन्सिबल है. बट अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें तो क्या हम सब भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो हम सच टाइप ऑफ कंटेंट को प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं? मैनी टाइम्स आप देखेंगे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली भी कई बार जेंडर इनसेंसिटिव कमेंट होता है, जेंडर इनसेंसिटिव कॉमेडी होती है, जेंडर इनसेंसिटिव कुछ भी पोस्ट है एटसेट्रा है, हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, सर्कुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, व्यूज डालते हैं, तो ऑब्वियसली सच टाइप ऑफ कंटेंट विल राइज. मेनी टाइम्स विट्रियोलिक, आउटराइट विट्रियोलिक कंटेंट होता है जिसका कंप्लीट नॉनसेंस है. क्लिक बेट्स होती है, वो क्लिक बेट्स होती है. दे आर देयर जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन. बट द पॉइंट इज ये जो हेट्रेड होता है, ये ऑनलाइन हेट्रेड कई बार बहुत क्विकली ऑफलाइन हेट्रेड में भी कन्वर्ट हो जाता है. फियर एंड देन साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग की जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है. एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है फेक न्यूज़ को टेकल करना, फेक न्यूज़ को टेकल करना. दूसरा एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि पेशेंस इज वन थिंग, और हम कभी भी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हैं. ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई, वी शुड क्रॉस वेरीफाई. अगर हम सच टाइप ऑफ जो डुबियस थिंग अगर इंटरनेट में इफ वी कम अक्रॉस, तो ये एक तरीका है फैक्ट चेकिंग करने के लिए. देयर इज नो डाउट रूल्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, एक बॉडी भी होना चाहिए जो इन सब पे निगरानी रखे. बट जो असली सॉल्यूशन होगा वो यूजर्स की तरफ से आएगा. वी शुड रेज अवर स्टैंडर्ड्स, हमारे स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, चॉइसेस बेटर होना चाहिए, मैच्योर हमारा कंडक्ट होना चाहिए. बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट, यू वॉच अ सर्टेन टाइप ऑफ गार्बेज थिंग्स फॉर सम टाइम एंड यू विल रियलाइज आप भी वही भाषा बोल रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो गया है, आप ही उतने अननेसेसरी, यू आर नॉट yourself, you are not yourself. So the point is you should be very very careful what type of content, what type of media you are consuming. So अगर इनको popularity नहीं मिलेगी तो obviously such type of content popular नहीं होगा और incentive नहीं होगा such type of content बनाने का. So this is the end game जो हमें समझना चाहिए. बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बिल है, IT इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, जिसमें सर्टेन रूल्स हैं. एक फैक्ट चेकिंग यूनिट भी होगा जो ऑल टाइप ऑफ फेक न्यूज़ जो होता है सोशल मीडिया में, एट टाइम्स सोशल मीडिया में डिवाइसिव भी होता है बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. We should rise above all these fissures. We should rise above all these fissures. So the point is, इसमें सबसे important चीज़ है यूजर मैच्योरिटी, व्यूवर्स मैच्योरिटी. व्यूवर्स को मैच्योर होना पड़ेगा और उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा ऑल टाइप ऑफ सच कंटेंट. देन ओनली हमें एक मैच्योर जो सिविल सोसाइटी है उसमें हम कन्वर्ट हो पाएंगे. Under the new rules, the content marked by the FCU as fake or misleading will have to taken down by online intermediaries if they wish to retain their safe harbor. What is safe harbor? Safe harbor मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें किसी ने कोई भी कंटेंट पोस्ट किया तो वो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं है, वो उस यूजर की जिम्मेदारी है. दिस इज कॉल्ड सेफ हार्बर. बट एट द सेम टाइम इफ यूजर ने अगर रॉन्ग कंटेंट पोस्ट किया है बट उस रॉन्ग कंटेंट को बहुत वायरल हो रहा है, वो
खूब सारे व्यूज आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ग्रोथ हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि हमेशा नेगेटिव चीजें क्यों दिखाई जाती? बिकॉज नेगेटिव चीजें आई बॉल्स को कैच करती है। इफ आई से कि आप रोज ऐसे सिस्टमेटिकली बोरिंग वे में डेली पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, सब इजी गोइंग होगा, दिस विल नॉट अट्रैक्ट दैट मच ऑफ अटेंशन। बट इफ आई से अगर ये वीडियो देख लिया तो यू विल गेट 150 मार्क्स इन प्रीलिम्स, अगर ऐसा नहीं देखा तो प्रीलिम्स में डिफिकल्टी आ जाएगी, यू विल ऑब्वियसली दिस विल प्ले विद योर साइकोलॉजी। बट ये एथिकल होगा? नहीं होगा। सो द पॉइंट इज, ये जो है ये एक हमें एक कॉमन जो एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इन क्लिक बेट्स और फेक न्यूज, फेक प्रोमिसेस, पाइप्ड ड्रीम्स एटसेट्रा से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है, बट अगर असल चेंज आएगा तो वो यूजर के थ्रू ही आ सकता है। यूजर मैच्योरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज। देन दिस इज सेकंड, टोटल बैन ऑन शार्प एज्ड वेपन्स इन श्रीनगर। तो ऐसे शार्प एज वेपन्स को कंप्लीट बैन कर दिया गया है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का डिफिकल्टी था। सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज बैन ऑन सेल, परचेज एंड कैरिंग ऑफ शार्प एज्ड वेपन्स इन पब्लिक प्लेसेस। कुछ एग्जेम्पशंस भी होंगे, पोजेशन ऑफ वेपन्स हुज ब्लेड इज मोर देन 9, ऐसे सर्टेन, अगर वो डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल पर्पज में है तो उसमें एग्जेम्पशंस है। ये आता है आर्म्स एक्ट 1959 के अंदर। तो दिस इज अगेन वन केस स्टडी में भी लॉ एंड ऑर्डर सच टाइप ऑफ स्टेप। तो ये जितने भी न्यूज़ में हम टैम्पलेट्स देखते हैं ना, ये एक आइडियाज है जिसको आप अपनी आंसर राइटिंग में, अपने डिस्कशन में इंक्लूड कर सकते हैं। देन दिस इज आउटरेज, द राइट अप्रोच, बाली शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली बिकॉज पुलिस, बेल शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली बिकॉज पुलिस ऑब्जेक्ट टू इट स्ट्रांगली। तो जो बेल होता है, बेल के भी टाइप्स होते हैं। द पॉइंट इज, बेल जो होता है वो लाइक जुडिशरी डिसाइड करती है, और बेल एट टाइम्स जो प्रिजनर है उसका राइट भी होता है। पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंसेस नीड फिक्सिंग। इसमें अगेन एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रेज किया है, वो ये है कि जब से ये टेक जाइंट्स आए, जैसे फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ या फिर गूगल हुआ, ये एक न्यूज़ चैनल की तरह बन गए हैं, न्यूज़ चैनल की तरह। और कई बार इधर का जो कंटेंट होता है, तो वो जो न्यूज़ जिसने क्रिएट किया है, क्या उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग होना चाहिए? इस बात पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। सेफगार्ड अगेंस्ट द मार्केट पावर ऑफ डोमिनियरिंग सर्च इंजिन्स, जैसे सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, बिग टेक है, प्लेयर्स है, डिजिटल इकोनॉमी को जो लाइक मीडिएट कर रहे हैं। तो यहाँ जो न्यूज़ जनरेटर है, न्यूज़ जो इन्होंने एक्चुअली, जैसे पब्लिशिंग हाउस है, न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, और ये टेक जाइंट्स हैं, इनके बीच में अगर न्यूज़ का अगर शेयरिंग हो रहा है तो एक प्रॉफिट और रेवेन्यू शेयरिंग भी होना चाहिए। दिस इज क्लासिक पब्लिक इंटरेस्ट मैटर सिंस द क्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिशर्स इज ऑफ डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस टू अ यूजर ऑफ डिजिटल न्यूज़। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एक फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए। बाकी इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और इंडिया में एज सच अभी हमने इसमें डिटेल में रूल्स एंड गाइडलाइंस इशू नहीं किया है। सो ऑल जो अभी हम बात करेंगे वो ये होगा कि देयर शुड बी लाइक डिजिटल जो जाइंट्स हो गए हैं, बिकॉज दे डिसाइड, आपको न्यूज़ देखना है, गूगल में सर्च करेंगे, गूगल का एल्गोरिदम बताएगा कौन सी न्यूज़ है, कौन सी वेबसाइट्स एटसेट्रा। सो देयर शुड बी सम रेवेन्यू शेयरिंग। वरना पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं, ये लॉस मेकिंग हो रहे हैं। दिस इज अगेन वन थिंग जो हमें समझना चाहिए, बिकॉज कई बार न्यूज़पेपर में भी आप देखना, दे एनकरेज यू कि यू मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर आप उनके सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करें, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवेबिलिटी। हर चीज़ जो होता है ना, वो रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू अर्न करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप बहुत बड़ा यूजर बेस बनाइए और वहां पे एड्स रन करिए। एड्स रन करेंगे, प्रमोशंस रन करेंगे, तो यूजर्स हैं उनको एड्स, प्रमोशंस एटसेट्रा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? जो आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जो वायरलिटी हो रहा है, वायरल वीडियोस बना रहे हैं हम, तो क्लिक बेट्स बना रहे हैं, बिकॉज वी वांट मोर यूजर एंगेजमेंट। तो इस एड रेवेन्यू मॉडल में कभी भी यूजर सेंटर स्टेज पे नहीं आ पाता है। दिस इज अ फैक्ट। एजुकेशन में भी हम देखते हैं, वायरल वीडियोस बनाना है, उसमें अगर यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही है, तो ऑब्वियसली मनी इज कमिंग फ्रॉम एड्स। तो उस केस में स्टूडेंट कैन नॉट बी एट द सेंटर स्टेज। सेकेंड जो मॉडल होता है वो होता है कि हम एक फी चार्ज करें। सेकेंड
जैसे कि न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शंस होते हैं, दे चार्ज अ नॉमिनल फी। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर ही है, इट कॉस्ट लाइक 999 रुपी फॉर अ ईयर, लेस देन 3 रुपी पर डे पड़ता है। सो दैट इज़ वाई वी एनकरेज कि हम पायरेसी एट्सेट्रा को नहीं बढ़ाएं। तो अगर यूज़र इज पेइंग फॉर दिस फी तो यूज़र फिर सेंटर स्टेज पे होता है। मीडिया हाउसेस को एड्स और अदर जो डोनेशंस एट्सेट्रा पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वो मीडिया एथिक्स और जो न्यूज़पेपर है वो अपने जर्नलिज्म को टॉप स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेंटेन कर पाएंगे। सेम अप्लाइज विद एजुकेशन। तो दैट इज व्हाई इफ अ टीचर इज आस्किंग फॉर फी, इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे। इट इज द राइट ऑफ द टीचर टू आस्क फॉर द फी। ओके, क्योंकि ये जो एजुकेशन स्पेशली होता है, इट इज लाइक अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ लाइफ। सो दैट इज वाई हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल बनाना बहुत जरूरी होता है, और वही इसका कोर इशू है। पब्लिशर प्लेटफॉर्म इम्बैलेंसेस नीड फिक्सिंग। इंटरनेट बैन विल नॉट रीस्टोर पीस इन मणिपुर। अगेन फेक न्यूज और इंटरनेट का यूजेज के बजाय मिस यूजेज ज्यादा होता है, उससे क्या डिफिकल्टीज आती है। बट अगेन इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। व्हेन द रिवर रोज, अब देखिए यमुना रिवर का हाइट बढ़ा, ज्यादा पानी आया। प्रॉब्लम क्या होता है कि एनक्रोचमेंट होता है फ्लड प्लेन में। फ्लड प्लेन क्या होता है, दिस इज रिवर एम्बैंकमेंट, और रिवर नॉर्मली इस एम्बैंकमेंट के अंदर रहती है। बट ये जो 2 to 3 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, ये एट टाइम्स क्या होता है, रिवर का फ्लड प्लेन होता है कि व्हेनेवर रिवर में पानी ज्यादा आता है तो रिवर यहाँ तक स्प्रेड हो जाती है। तो आइडियल केस में ये एम्प्टी रहना चाहिए, बट ये वैकेंट नहीं होता है। यहाँ पे हम एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती है, कॉलोनीज बन जाती है, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, रोड्स बन जाता है, एटसेट्रा। तो जब पानी का ओवरफ्लो होता है तो उस वाटर को फ्लड प्लेन नहीं मिलता, और फिर वाटर इनंडेट करने लग जाता है हमारे सिटी एटसेट्रा में, और उससे डूब होती है। तो विड्थ ऑफ द रिवर जैसे 800 मीटर से 3 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो सकती है। फ्लड प्लेन्स का एनक्रोचमेंट एक सबसे बड़ा इशू है दिस ऑल टाइप ऑफ फ्लड्स में, कि हम नेचुरल वाटर फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। 78 का फ्लड्स आया दिल्ली में, देन इसके अलावा एग्जांपल्स दिए। एनजीटी अक्सर बोलता है कि जो फ्लड प्लेन है उसको हमें लाइक डैमेज नहीं करना है, बिकॉज ये जो जमीन होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करती है। अगर हम कॉन्क्रेटाइज कर देंगे सारी चीजें तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाएगा और फिर उससे फ्लड्स आएगा। तो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया में यमुना में बहुत डिफिकल्टी आया है, और अब इसके बाद यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। असम राइफल्स फाइल सेडिशन केस अगेंस्ट इम्फाल ग्रुप। Abe ka genius lay in ability to look beyond alliances. Then can't ask government to recognize a language as official one. Indian language as optional medium. Then Vishwa Bharati. Then railway safety is paramount. Report violation ban on e-cigarette. तो this is e-cigarette. Although e-cigarette को at times ऐसा brand किया जाता है कि this is less harmful than a regular cigarette. But cigarette is a cigarette. All cigarettes are harmful. तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पे जितनी भी लाइक वॉयलेशन है, बैन है वैसे ई सिगरेट, अगर इसका वॉयलेशन हो रहा है तो वो रिपोर्ट करना जरूरी है। तो दिस कम्स अंडर नार्कोटिक्स, और इसके इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि रिपोर्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन इंडियन ओरिजिन डॉक्टर इज चेयरमैन इलेक्ट ऑफ दिस फाउंडेशन। Then this is world news. Saudi and Aramco locks up stake in China petrochemical firms. China और Saudi countries में friendship बढ़ रही है. Then Navy. This is in an unprecedented move. Biden pick women admiral to lead Navy. So officer is an officer. Then Israel and tech titans promise watermarks to expose AI creations. देन यूक्रेन एंड दिस क्लस्टर म्यूनिशन यहाँ पे हो गया। ये जो क्लस्टर म्यूनिशन होते हैं ना, ये कई बार दिस जो लोकल जो पॉपुलेशन होती है सिविलियन, उनके लिए भी काफ़ी डेडली प्रूव हो जाते हैं। तो काफ़ी कंट्रीज में ये क्लस्टर म्यूनिशंस को बैन किया जाता है। देन RIL Q1 का प्रॉफिट इतना फॉल हुआ है। DGCA अलाउज गोफर्स टू रीस्टार्ट दिस फ्लाइट। एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, वेस्ट इंडीज। अब हम क्विकली संडे का न्यूज़पेपर देखते हैं। So this is Sunday's newspaper. Fewer takers for BDS and MDS seats. तो ये जो डेंटल है इसमें काफ़ी सीट्स अभी वैकेंट जा रही है, 10 to 55% सीट्स। अगेन द पॉइंट इज कि एक्सपर्ट्स ने बताया प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टैग्नेंट सैलरीज मेन रीजंस हैं स्टूडेंट्स नॉट ऑप्टिंग फॉर डेंटल कोर्सेज फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसको भी
सस्टेनेबल रखना बहुत ज़रूरी है। Vultures fly high in forest expanses. Swarms in Tamil Nadu hill station face a slow death. Mind Mendes is studying psychology to heal old wounds. So this is the front page. Delhi government on high alert. Yamuna likely to breach danger mark again. Water level recede हुआ था but अब फिर वो शायद rise हो सकता है. तो the point is government urges people to remain vigilant. देन क्रैकडाउन है चाइनीज मांझा 120 रोल सीज. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. मांझा क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं मांझा. चाइनीज मांझा होता है, ये बहुत शार्प होता है. एट टाइम्स ये बर्ड्स, इससे नुकसान होता है, बर्ड्स हिट हो जाती है. कई बार पतंग जैसे कट गई है और मांझा ऐसे यहाँ पर है रोड्स में या फिर कहीं पे, ये इतना शार्प होता है कि कई बार एक्सीडेंट्स हो गए हैं टू व्हीलर्स. लाइक ये डेडली हो जाता है, कट करता है ये. तो ये मांझा को बैन किया गया है. द पॉइंट इज कि फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल होता है, बट इट शुड नॉट टर्न इनटू सम सॉरो. एक हमें जिम्मेदारी यहाँ पे जरूरी है. ये चाइनीज मांझा जो है ये बैन है. देन दिस इज दिस न्यूज. अब नेक्स्ट इज इन्वेजिव weed threatens elephant habitat in Tamil Nadu. So this is invasive species. So women plucking tea leaves as an elephant and a gaur graze in a swamp at Valparai. Aquatic weed है, native to some countries in Central and South America. पेरू का है ये, मतलब ये पेरू से इंडिया आ गया है. ये थ्रेटन कर रहा है एलिफेंट हैबिटेट्स को. फोरेजिंग एरिया इन तमिलनाडु हिल स्टेशन क्लोज टू केरला बाउंड्री. तो ये स्टेशन है. अब इसको लोकली बोला जाता है वयाल्स. हिल स्टेशन स्वॉर्म्स लोकली नोन एज वयाल्स, जहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं. ग्रास होता है, एलिफेंट अपने फूड के लिए आता है यहाँ पे. तो द पॉइंट इज ये जो स्वॉर्म्स हैं ये प्राइवेट एस्टेट्स पे भी हैं और यहाँ पर ये वीड ट्रिक हो रहा है. ये वीड वहाँ पे काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. If not done correctly, trying to pull it out will help it spread even more. So we have to pluck and remove these weeds. Rapid large scale weed का हो रहा है. इससे क्या होता है? ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट था, टाइनी येलो फ्लावर था, हैज शेकन द बैलेंस ऑफ दीज पेरेनियल फोरेजिंग ग्राउंड्स. जहाँ पे एलिफेंट्स आते थे ग्रासेस के लिए, तो ग्रासेस को कंपटीशन हो रहा है और ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है वो डोमिनेट कर रहा है. Limiting the growth of grass and native plants that are plantable to elephants and animals including gaur. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टैम्पलेट है. अच्छा इन द सेंस टैम्पलेट है कि इन्वेजिव स्पीशीज से क्या थ्रेटन होता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. आपको ये टैम्पलेट दिखा, इस टैम्पलेट को आंसर राइटिंग में सम वे जहां पे आपको लेटेस्ट बताना है इन्वेजिव स्पीशीज का एग्जाम्पल, यूज दिस एग्जाम्पल. शोइंग सॉलिडारिटी. इंडिया गेट इल्यूमिनेट हुआ है. वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे है. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, जेनेटिक कंडीशन होता है. इससे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सोशल लैंग्वेज इमोशनल डिफिकल्टी होती है. तो शोइंग सॉलिडारिटी. देन फ्रीड लेबरर्स बाउंडेड टू पास्ट इन ओडिशा. दिल्ली ग्रीन कवर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. Then this is INS Kirpan decommissioned from Indian Navy, handed over to Vietnam as a present. तो ये INS Kirpan है, इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट था. 32 ईयर इसने सर्विस दिया. अभी इसको हैंड ओवर किया जा रहा है दिस वियतनाम को एज अ गिफ्ट. रशिया एक्सेप्ट्स अ पैरा ऑन यूक्रेन वॉर. ये इंपॉर्टेंट है. टेली मानस हेल्पलाइन रन बाय गवर्नमेंट हैज फील्डेड 2 लाख डिस्ट्रेस कॉल. सबसे जो समझने वाली चीज है महत्वपूर्ण, वो ये है कि फिजिकल एलिमेंट तो दिखता है. फिजिकल एलिमेंट दिखता है मतलब समबडी हैज गॉट कोल्ड या फिर कुछ बॉडी में डिफिकल्टी आ रहा है, फीवर आ रहा है, कुछ डैमेज हुआ है, ये चीज दिखती है, फिजिकल चीजें दिखती है. बट जो इमोशनल डैमेज होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है या इवन डिप्रेशन होता है, ये नजर नहीं आता. और जो चीज नजर नहीं आता तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं और उसको क्योर नहीं करते. द पॉइंट इज इट इज अगेन वन टाइप ऑफ एलिमेंट. ये एलिमेंट भी विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं. नथिंग टू बी वरी अबाउट. इसमें किसी भी टाइप का सोशल टैबू नहीं होना चाहिए. जनरल फीलिंग ऑफ सैडनेस है. ऐसा बोला जा रहा है अभी जो नई जनरेशन है, वी आर हैविंग अ जनरेशन जो काफी सैड है. सैडनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये टॉप रीजंस है मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के. तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी बार बार यही समझाता हूँ, आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की कोशिश करते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में आप सिंपल चीज़ें भी नहीं कर पाते. सी आई एम टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई सी दिस पैटर्न. एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ, everybody wants to do like extraordinary things, but
आप सिंपल सिंपल चीज़ों से जब एग्जाम निकल रहा है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों करना चाहते हो? क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव नहीं करना है, हमें बस एग्जाम क्वालिफाई करना है और वो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। बस हमें एक कंसिस्टेंसी रखना है, पॉजिटिव आउटलुक रखना है और मेहनत बहुत ऑनेस्टी से करना है, डिसिप्लिन वे में। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 18 घंटे पढ़ें, हम 6 घंटे रोज पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। वी डोंट हैव टू बी लाइक कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक सैडनेस के मोड में चले गए, ओवर्ट सीरियसनेस दिखा रहे हैं। नॉट रिक्वायर्ड, बी नॉर्मल। एंजाइटी हो रही है, हम अननेसेसरी खुद को कंपेयर करते हैं। आपने आज प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो समबडी से जो हु इज इन दिस फील्ड फॉर से लास्ट 8 मंथ्स और 7 मंथ्स और 6 मंथ्स? डू नॉट कंपेयर। हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और ये इतने कॉमन हो गए मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो इस चीज़ पे हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट रन नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, टेली मानस। इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, दे डू द काउंसलिंग, वो आपको हेल्प करते हैं। इसमें इतने कॉल्स आ रहे हैं। 42 ऑपरेशनल टेली मानस है, 31 स्टेट्स यूटी में। ऑल 20 लैंग्वेजेस से यहाँ पे आपको पीपल मिलेंगे, दे विल हेल्प यू। सो काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ऐसे जैसे देखो एग्जाम सीजन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं। दीज कॉलर्स वर हेल्प बाय काउंसलर्स विद सपोर्टिव काउंसलिंग, सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। तो ये टोल फ्री नंबर है 14416 आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्जाम्स को एग्जाम्स की तरह लेना चाहिए, ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, सिंसियर, और खुद को ऐसा बर्डनड नहीं करना चाहिए। सेट फ्री। इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू ड्रॉप योर बैगेजेस। हेवी बर्स्ट ऑफ रेन टर्न्स जूनागढ़ स्ट्रीट इनटू रिवर्स, कार्स एंड कैटल स्वेप्ट अवे। तो ये भी बड़ा हॉरिफिक सीन था। ये इस टाइप का फ्लडिंग देखने को मिला है जूनागढ़ में। देन कैप्टिव ब्रेड वल्चर्स टेक विंग इन फॉरेस्ट एक्सपेंसेस। तो वल्चर्स एक टाइम पे हमारे यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेवल पे आ गए थे। जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में। तो इनको कैप्टिव ब्रेड है, मतलब सेंटर में इनको ब्रीड करके इनका बर्थ हुआ है, सेंटर में इनकी ब्रीडिंग हुई है। अब इनको वाइल्ड लाइफ ओपन में छोड़ा जाएगा सो दैट ये ओपन वाइल्ड लाइफ में भी सर्वाइव कर पाए। तो ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन हो गया था, हमने स्पीशीज को रिवाइव किया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ड्रग है जो इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, डाइक्लोफेनाक एक्सेट्रा, जिनके कारण इन वल्चर्स की ह्यूज पॉपुलेशन लॉस हुआ था। ऑर्निथोलॉजिस्ट ने इसको बताया था। तो अभी इस ड्रग को भी बैन कर दिया गया है। ड्रग्स को बैन करने का ये था कि अगर कैटल को हम वो ड्रग देते थे, गाय भैंस कैटल को, और जब वो कैटल डाई होता है तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उस पर फीड करता है वल्चर। तो वल्चर के अंदर भी वो मेडिसिन चली जाती है और फिर वल्चर को उसकी पॉपुलेशन को डिफिकल्टी होने लग गई, ब्रीडिंग एक्सेट्रा में डिफिकल्टी हुई। सो दैट इज वाई ये जो कैरकासेस को जो वल्चर खाते हैं, तो हमने इस ड्रग को ही बैन कर दिया। तो वल्चर फ्री जोन भी बनाया हमने। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी यहाँ पे वर्क कर रही है और दिस इज वल्चर। ओके, तो वल्चर को अभी सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स बनाए हैं हमने, इनको वाइल्ड में हम रिलीज कर रहे हैं। दिस इज अगेन अ सक्सेस स्टोरी। तो सी, ये कैटल कैरकासेस खाते थे ये, तो उससे क्या हो रहा था, इनको किडनी फेलियर होने लग गया था वल्चर्स को, और इनकी पॉपुलेशन ह्यूज अमाउंट पे ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिला था। तो ये क्या है, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन पिंजौर। Hollywood, then ISA, North Korea, then Strength China. Reservist threatens to quip over Israel. Ukraine drone, then protest. China helping Russia with military equipments. This is new. Afghan Taliban, Pakistan. This is again one thing. Genomic data throw light on demise of copper age. तो copper age था, एक्चुअली आयरन बाद में आया, कॉपर पहले आया था, चैल्कोलिथिक एक्सेट्रा। तो कॉपर एज जो था ये एक दौर था ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रोथ का, जब हम प्राइमरली कॉपर एज अ मेटल को यूज करते थे फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये जो कॉपर एज था, इस एज में नई इकोनॉमी आती है, मेटलर्जी आती है, व्हील आता है, वैगन ट्रांसपोर्टेशन आता है, हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। ये करीब आज से 4250 साल पहले ये कॉपर एज खत्म होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर आयरन एज चालू होगा, आयरन एज। तो हम जेनोमिक सीक्वेंसिंग से इन सारे डेटा को देख रहे हैं, नियोलिथिक कॉपर एज का हम स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फाइंडिंग ने बताया यहाँ पे धीरे धीरे हमारा पैटर्न चेंज हुआ, प्रोग्रेस हुआ यूरोप में, यूक्रेन में, फिर इस तरीके से नेक्स्ट एज में हम शिफ्ट हुए।
एंडोवास्कुलर प्रोब रिकॉर्ड्स डीप ब्रेन एक्टिविटी इन माइस। तो ये जो माइस है इस पे हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम ह्यूमन बॉडी एंड दिस एटसेट्रा साइंस प्रोग्रेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल इम्प्लांट लगाया ब्लड वेसल्स में माइस में, और फिर देखा गया कि वहाँ ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिले, डीप ब्रेन एक्टिविटी। देन NW ग्रीनलैंड वॉज आइस फ्री अराउंड these many years ago। तो एक्चुअली अर्थ के लिए सब वैल्यू न्यूट्रल है, कभी आइस एज आता है, फिर वार्मिंग आता है, फिर आइस एज आ जाता है, तो ऐसे सर्कल चलता रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉज ऑफ वरी बिकॉज दिस इज एंथ्रोपोजेनिक। अगर रेगुलर होता है तो ये नेचर के लिए वैल्यू न्यूट्रल है, तो ये आइस एज है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग आर्कटिक, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में ग्लेशियर फ्री हो सकता है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। ग्लोबल जीपीएस डेटा इंडिकेट फॉल्ट स्लिप बिफोर लार्ज अर्थक्वेक। नाउ सी, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमको 5-10 मिनट्स का भी अर्ली स्टार्ट मिल जाए तो हम बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये जियोडेटिक स्टेशन जीपीएस डेटा ने बताया कि अर्थक्वेक आने से पहले यहाँ पे लाइक फॉल्ट स्लिप था, वहाँ पे आपको नोटिस किया, इंडिकेट किया फॉल्ट स्लिप बिफोर अर्थक्वेक जब स्ट्राइक हुआ। यहाँ पे बात है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनलिमिटेड पोटेंशियल, द बेनिफिट्स एंड द रिस्क। सी, AI इज अ गेम चेंजर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं है कि बस हम डेटा ड्रिवन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में भी है। AI helped in democratizing knowledge, cutting edge science and applications are unlikely to develop in resource limited settings। प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम, जैसे इसमें क्या हुआ, मेडिकल पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिए, हमें इतना बॉदर नहीं करना है। पर्टिकुलर एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, 3D स्ट्रक्चर है, इनको स्टडी करना लाइक मैनुअली विद द हेल्प ऑफ रेगुलर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो बहुत लेबोरियस है। बट AI के थ्रू ये पैटर्न एनालाइज कर रहा है, कंप्यूटेशन प्रोग्रेस भी अच्छी हो गई, इतनी कॉन्फ़िगरेशन, जो काम हमें 1000 मिलियन मैन ईयर्स में होना था वो AI ने विद इन से मिनट्स कर दिया। दिस इज द पॉइंट। तो ये डीप माइंड है, अल्फा फोल्ड, इसने ब्रेक थ्रू किया और सारे कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग, AI एट टाइम्स इतना भी बेहतर होता जा रहा है कि हम बहुत सारी डिसीजेस के ऑनसेट को बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है और किस टाइम पे किस ह्यूमन बीइंग में कौन सी लाइक डिसीजेस या डिफिकल्टीज आने वाली है। ये चीज भी इन फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर पॉसिबल होगा। सेल्फ हीलिंग क्या होता है, एक वर्ड होता है फटीग। मेटल जब बहुत टाइम तक यूज होता है तो उसमें फटीग आने लग जाता है। जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली जो सबमरीन भी गया था डीप ओशन में, उसमें बोला जा रहा है उसमें फटीग आ गया था। फटीग आने से वो वीक होने लग जाता है और फिर वो कैटास्ट्रोफिक होता है। तो अगर मेटल सेल्फ हील हो पाए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको फटीग लगता है, हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, स्लो डाउन होते हैं एंड वी रिकवर, सेल्फ हीलिंग। तो सिमिलरली मेटल भी क्या सेल्फ हीलिंग कर पाएगा, सेल्फ हीलिंग इंजन्स, ब्रिजेस, एयरप्लेन्स, तो ये रिवर्स हो पाएगा डैमेज, वियर एंड टियर। दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूँ सोना बहुत जरूरी है। व्हेन वी स्लीप, जब हम स्लीप करते हैं ना तो बॉडी की सर्विसिंग होती है, बॉडी में जितने भी वियर एंड टियर हुआ, स्ट्रेस हुआ, तो व्हेन वी स्लीप वो सब रिकवर हो जाता है। Fatigue damage is one form in which machines wear out and eventually break. So that is why sleep and rest is important. Self care is important. Okay. So this is there. और ये मेटल में भी देखने को हम देख रहे हैं। मेकिंग मीट इन द लैब, रेगुलर आर्टिकल है जो मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है, आर्टिफिशियल लैब मेड मीट का। जैसे जो नेचुरल मीट है वो बहुत एनवायरमेंटल लाइक टैक्सिंग हो सकता है, उसमें लाइक बहुत सारे एनवायरमेंटल जो फुटप्रिंट्स हैं ज़्यादा होते हैं, और एट टाइम्स वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, डिसीजेस का भी थ्रेट होता है। तो क्यों ना हम लैब ग्रोन मीट को आगे बढ़ाएं। तो लैब ग्रोन मीट जो होगा वो सेम टेस्ट भी देगा, बट एट द सेम टाइम उस वो और थोड़ा हेल्दी भी हो सकता है, न्यूट्रिशियस भी हो सकता है कन्वेंशनल लैब से, कन्वेंशनल मीट से। तो अभी इस पे वर्क चल रहा है। अभी लेटेस्ट सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडिया में भी बात है कल्चर्ड मीट का, एनिमल सेल से इसको ग्रो करके बनाया जाए, कल्चर्ड मीट प्रोड्यूस होगा। ये यूएस में भी है, स्टेम सेल से, मसल से, ऑर्गन से हम प्रॉपर पूरा मीट बना सकते हैं जो हमें कैटल्स या एनिमल से मिलता है। लेट अस सी, बट इसमें सर्टेन एथिकल एंगल्स भी आते हैं। सो दैट इज वाई इसको बहुत ज़्यादा भी एनकरेज अभी नहीं किया जा रहा है, हमें कॉशियस अप्रोच यहाँ पे बना रहे हैं। कैन न्यू डेटा पैनल इम्प्रूव इंडियाज स्टैटिस्टिक्स। तो न्यूज़पेपर ऐसे ही चलता है, इसमें रिपीटिशन होता है, न्यूज़ का ग्रेजुअली अनफोल्ड होती है। कई दिनों से हम देख रहे हैं नया स्टैटिस्टिक्स पैनल बनाने की बात है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स जो थी 2019 में बनी थी, जो NSO को हेल्प करेगी डेटा कैसे बनाना है, स्टैटिस्टिक्स को क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए उसमें,
वो अब क्या है, नया पैनल आ रहा है। बिकॉज पुराना जो कुछ एनएसओ का डेटा था वो जंक माना गया, वो ऑथेंटिक नहीं था, एक्यूरेट नहीं था, ऐसा बोला गया। आईआईपी सीपीआई जैसे रिलेटेड डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो पैनल है वो क्या करेगा, एनएसएसओ और जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है उसमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो नहीं है, मॉडर्न साइंटिफिक वे में चीज़ों को कंप्लीट करे। ये G20 क्या अग्री होगा जॉइंट कम्युनिक में? आई डाउट। वाई? बिकॉज अभी भी रशिया और नेटो में डिफिकल्टी है। तो रशिया, बिकॉज इंडिया का भी क्लोज फ्रेंड है, तो रशिया विल बी कमिंग, रशियन जो प्रेसिडेंट है ही विल बी कमिंग टू इंडिया। और क्या यहाँ पे जॉइंट कम्युनिक हो पाएगा टॉप 20 इकोनॉमीज का? यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है, जैसे चाइना है, चाइना को प्रॉब्लम है, ट्रेड वॉर है। देन अभी ये मैटर्स इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म, एजुकेशन, लेबर, क्राइम, डिजिटल सिक्योरिटी, इवन स्पेस इकोनॉमी भी। लीडर्स डेक्लेरेशन बीइंग इशूड एट द G20 समिट इन इंडिया ऑन September 9-10। तो लेट अस सी सितंबर में जॉइंट कम्युनिक आता है या नहीं आता है। तो वेरी फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से फिशर्स इतने ज़्यादा हैं वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में कि एक कॉमन स्टेटमेंट हम रिलीज नहीं कर पा रहे। पहले क्रीमियन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रशिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बाली पैराग्राफ में भी अभी डिफिकल्टी आ गई थी इंडोनेशिया में। लेट अस सी, अभी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं, रशिया एंड चाइना अपोज करेंगे इसे। लेट अस सी, इंडिया के लिए ये काफ़ी एक चैलेंज होगा, सारे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं इनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाना और स्मूथली सारी एक्टिविटीज़ कवर करना। तो जॉइंट कम्युनिक की बात है, जियो पॉलिटिकल इशूज है। देन इसके अलावा लेट अस सी, देन जीरो हंगर, ये न्यूज़ भी अभी बना हुआ है। जीरो हंगर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पॉवर्टी हुआ, हंगर हुआ, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें दूर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी। पैंडेमिक में जो है पॉवर्टी एंड जो हंगर है, न्यूट्रिशन रिलेटेड चैलेंजेस भी देखने को मिले। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है, व्हेन ऑल द पीपल टू एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी, कि आपके पास प्रॉपर सफिशिएंट क्वांटिटी में सफिशिएंट क्वालिटी का फूड जब आप चाहें जितना चाहे अवेलेबल है, तो इसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमन जो प्रोग्रेस हुआ है वो फूड सिक्योरिटी के कारण ही हुआ। टाइगर, लायन होता है, दे आर वेरी स्ट्रांग, बट डे स्टार्ट होते से ही दिन भर टाइगर को टेंशन होता है आज मैं कैसे खाना खाऊंगा। बट ह्यूमन बींग्स ये टेंशन फ्री हो गए बिकॉज हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिया, और इस एग्रीकल्चर के कारण हमें फ्री टाइम मिला और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। गोल 2 है जीरो हंगर, SDG है। तो इसमें भी लिखा है कि फूड सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट, कोविड के कारण प्रॉब्लम हुआ है। ओवरऑल हमारा जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसने हेल्प किया है। बट एट टाइम्स जैसे ग्लोबल हेडविंड्स है, जैसे अभी ब्लैक जो सी डील है उससे रशिया आउट हो रहा है, तो यूक्रेन का जो व्हीट है, ग्रेन्स है, उसका सप्लाई टू द वर्ल्ड डिफिकल्ट होगा। सॉल्यूशंस ये हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द वल्नरेबल एंड डिलीवर द बेनिफिट्स टू दोज वल्नरेबल्स। ओके, तो ये रिपोर्ट की बात है। लेट अस सी, अ न्यू हेयर टू द टेनिस थ्रोन एंड दिस इज ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, then RBL, and that this is sports. Now this is again very important, the heat is on. Canada on alert है, फायर रिटार्डेंट डाल रहे हैं बिकॉज कनाडा में वाइल्ड फायर, ट्री लॉस हो रहा है। ये कहाँ पर है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। देन हीट इतना ज़्यादा है कि यूजुअली जो कनाडा होता है वो टेम्परेचर कम रहता है, बट चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, टेम्परेट कंट्रीज हो, यहाँ पे टेम्परेचर इज ऑन राइज। वाइल्ड फायर्स है, स्कॉचिंग हीट है, बैटर्ड यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना में भी डिफिकल्टी, सब टेम्परेट कंट्रीज जो है ना 23.5 डिग्री के और ऊपर जाते हैं हम, 40 डिग्री 50 डिग्री, यहाँ डिफिकल्टीज देखने को मिल रहा है यूरोप में, इटली में, स्पेन में। तो दिस इज टेम्परेचर इज राइजिंग, ग्लोबल वार्मिंग है ये। स्पेन हुआ, पोलर बियर्स हुए, ब्रीफ रेस्पाइट है, बट स्मॉल मर्सीज है, स्टेइंग सेफ। सो दिस इज वन थिंग। नाउ अब हम आते हैं आंसर राइटिंग डिस्कशन पे। 19th का आज देखते हैं, ऑलमोस्ट हम ऑन ट्रैक हो गए, कल हम ऑन पार आ जाएंगे 20th का। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, DRDO, GM क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको लिखना चाहिए, लिखने से बहुत हेल्प मिलेगा। अरुण आप बहुत अच्छा कर रहे हो, देखो कितने बढ़िया से लिखा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन। जीन क्या होता है, दिस। सेल डायग्राम वर्क, वेरी नाइस। GM क्रॉप्स है, BT कॉटन, एडवांस, सी सो सिस्टमैटिक। इश्यूज क्या है ये भी आपने बता दिया, वेरी नाइस। राइट एंड राइट मोर।
दीपेश दिस इज गुड, डीआरडीओ के बारे में बताया। सी आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, कंप्लीट पूरा आपने टॉपिक एक्सप्लेन किया। जीएम क्रॉप जहां भी साइंस का टॉपिक है डायग्राम आना चाहिए। इफेक्ट ऑफ वायलेंस वेरी नाइस। अमरजीत दिस इज गुड, डीआरडीओ पे आपने हिंदी में लिखा। लक्ष्य क्या है? नवीनतम। देखो जितना लिख रहे हैं हमारी कॉपी बेहतर हो रही है। आप पुरानी और अभी की कॉपी को देखो, यू विल फाइंड डिफरेंस। दिस इज गुड। सी अच्छे से आपने डायग्राम बनाया, फैंटास्टिक। राम नरेश आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, डीआरडीओ के बारे में बताया। सी लैंग्वेज वेरी नाइस, डायग्राम वर्क, योर कॉपी इज रियली गुड। सारी मिसाइल सिस्टम भी बताया आपने। सी हमारा प्रीलिम्स का भी एक मेजर पार्ट कवर हो गया। ये जीएम क्रॉप्स हैं, वेरी गुड। जीएम क्रॉप्स के बारे में बताया, वेल डन। डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा सेंसिटिव था। सी सारे पॉइंट्स बताया 1 2 3 4। ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज जो होता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है। Manju, see diagram work, see the copy, this is really good. GM crops, the presentation of this copy is really good. This is nice. Defense research development, DRDO and way forward. हरजिंदर ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड हरजिंदर, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। नंदनी ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? ओके, वे फॉरवर्ड बताया आपने और गुड, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, दिस इज रियली रियली नाइस। सुंदर दिस इज गुड, जीएम क्रॉप्स के बारे में बताया, कंक्लूजन एंड चैलेंज। तो सी राइटिंग इज वेरी इजी, द आइडिया इज हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज नहीं करना है, आप लिखो, मेंस बिना लिखे क्वालिफाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।